Today is a new day and we are going to learn something new and interesting. We are going to dance, we are going to sing some new songs. But before we start, let's look to God in prayer. Let's pray together. Dear Lord Jesus, we thank you for your presence and your Holy Spirit that is upon us. We thank you, Lord, for this amazing day that you have given us. Bless us, heal us, protect us. Thank you for your blessing and anointing. In the name of Jesus, we ask this prayer. Amen. There was a beautiful day years back when Christ Jesus was born. बहुत साल पहले एक ऐसा दिन था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मत्ती अध्याय 1 में बाइबल हमें यीशु मसीह के जन्म की कहानी बताती है। In the Bible, Matthew chapter 1 verses 18 to 23 tells us the story of the birth of Jesus. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us." यीशु मसीह का दूसरा नाम इमानुएल है, क्योंकि उसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। John chapter 3 verse 16 tells us, "For God so loved the world that he gave his only son for us." Friends, Jesus was an exceptional child. यीशु मसीह सारे बच्चों से सबसे भिन्न थे। और क्या आपको पता है, Jesus was a very obedient child as well. Luke chapter 2 verse 40 tells us that the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. यहाँ पर child is Jesus. बचपन ही से Jesus बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हम बाइबल में ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस पढ़ते हैं जहाँ जीसस के लाइफ के बारे में लिखा है। एक बार जब जीसस के पापा और मम्मा फसह के फेस्टिवल के लिए जेरूसलम गए थे, तब जीसस वाज 12 years old. लूक चैप्टर 2 वर्सेस 43 to 49 कहता है, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद
उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसे क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? Jesus made his parents understand the importance of him being the Son of God. As John chapter 3 verse 16 tells us, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Jesus always lived a disciplined, prayerful life. As Luke chapter 6 verse 12 tells us that Jesus would go to the mountain and pray to the Father whole night. Friends, यीशु मसीह माउंटेन के ऊपर चले जाते थे और परमेश्वर पिता से रात भर हर दिन प्रार्थना किया करते थे। एक बार वो 40 डेज का फास्टिंग भी किए। This one time he fasted for 40 days. Friends, we are also the children of God. क्योंकि बाइबल गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 26, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 में कहती है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। For you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. So my dear friends, if we believe in Jesus and have faith in him, we automatically become his children. And that's why the Bible tells us in Matthew chapter 19 verse 14, but Jesus said, let the children alone and do not hinder them from coming to me, for the kingdom of heaven belongs to such as these. यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। And 2 Corinthians chapter 6 verse 18 tells us, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगी, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। These verses tells us that we are the children of God. इन वचनों से हमें यह पता चलता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए जैसा जीवन जीसस का था वैसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। We are God's children. We must live like Jesus. Like Luke chapter 2 verse 40 says, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. लूका अध्याय 2 पद संख्या 40 कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। So friends, remember to obey your parents, to never lie, steal or fight, and to always be prayerful and be connected to God. इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि मम्मी पापा का आदर करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी चोरी नहीं करना है, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, और हमेशा प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है, ताकि आप गॉड से कनेक्टेड रहें। बिकॉज गॉड लव्स यू, यू आर ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस। सो आज का बाइबल वर्स है लूक चैप्टर 2 वर्स 52. We will read it together. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. लूका अध्याय 2 का वर्स 52 एक साथ मिलके पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में
और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सो फ्रेंड्स, इस वचन से आप लोगों को आशीष मिले। इस वचन को आप लोग याद करिए, फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे बच्चों, यीशु जैसा बनना, जैसा वो करता था वैसा ही करना। प्यारे बच्चों, यीशु जैसा बनना, जैसा वो करता था वैसा ही करना। सारी जमीन में, सारे आसमान में दूजा ना कोई यीशु जैसा महान। सारी जमीन में, सारे आसमान में दूजा ना कोई यीशु जैसा महान। He's the real hero, he's the superhero, he's the real hero, he's the superhero। बाइबल के वचन पे चलना, माँ बाप की बात मानना, गैरों से प्रेम रखना, दीनों पर दया करना। बाइबल के वचन पे चलना, माँ बाप की बात मानना, प्रेम रखना, दीनों पर दया करना। सारी जमीन में, सारे आसमान में दूजा ना कोई यीशु जैसा महान। सारी जमीन में, सारे आसमान में दूजा ना कोई यीशु जैसा महान। He's the real hero, he's the superhero, he's the real hero, he's the superhero। वचन पे चलना, कभी झूठ ना बोलना, लड़ाइयों से दूर रहना, कभी लालच न करना। बाइबल के वचन पे चलना, कभी झूठ ना बोलना, लड़ाइयों से दूर रहना, कभी लालच न करना। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि जीसस क्राइस्ट ने अपने लाइफ को कैसे बिताया। वी लर्नड अबाउट हाउ जीसस क्राइस्ट लिव्ड हिज लाइफ एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू लिव आवर लाइफ। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को बिताना है। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे एंड आई होप you will follow it. So let's look to God in prayer. Loving Heavenly Father, we thank you for your presence and your Holy Spirit. We thank you, Lord, that you sent your only begotten Son to the earth to help us, to protect us, and to guide us. Father, Lord, we thank you once again. We commit ourselves into your holy hand. Protect us, Lord. Give us wisdom and knowledge. In Jesus' most holy name we ask this prayer. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट।
Stay connected. We will meet next Sunday again at 9:30 a.m. We love you. Bye bye.